Dear students, today I will deliver lecture on radial and transverse velocities and acceleration, polar coordinates for mathematics paper 3rd dynamics for the students of BA, BSc 6th SEM 3rd year. Chapter 1st, Unit 1, Section 1, Radial and Transverse Velocities. We will revise here. You have already done this section in your classrooms. We are revising. Radial and transverse velocities and acceleration, polar form, polar coordinates. Radial and transverse velocities. Consider a particle moving in a plane r equal f theta such that p r theta is its position at time t, referred to O as pole and OX as the initial line. This OX as pole and OX as initial line. The result part of the velocity p along the radius vector of p in the sense of r increasing is called the radial velocity. Resolved part of the velocity of p along the radius vector of p in the sense of r increasing is called the radial velocity. The result part of the velocity at p पे है along a line through p के through है and but at right angle to radius vector of p and in the sense in which theta increase करे is called the transverse velocity. This is PQ. P के परपेंडिकुलर B sin अल्फा B cos अल्फा B वेलोसिटी है along the tangent. ये OPR है, OQ आपका R प्लस डेल्टा R है. अब रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये तो वेलोसिटी के बारे में, अगर एक्सेलरेशन के बारे में इसका करेंगे तो कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन r equal to f theta such that p r theta is the position at time t, referred to O as pole and OX as the initial line. The resolved part of the acceleration at p along the radius vector of p in the sense of r increasing is called radial acceleration. Consider a particle moving in a plane r equal to f theta such that p r theta is its position in time t, referred to O as pole and OX as the initial line. The result part of the acceleration at p along the radius vector of p in the sense of r increasing is called radial acceleration. The result part of the acceleration at p along a line through p but right angles to radius vector of p and in the sense in which theta increases is called the transverse acceleration. To find the expression for radial and transverse components of velocity and acceleration of a particle moving along a plane curve r equal to f theta MDU 2016 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 2008. Consider a particle moving on a plane curve
r equal to f theta such that p r theta be its position at any time t. Let qr plus delta r theta plus delta theta be a point in the neighborhood of p on the curve at time t plus delta t. तो OP इक्वल टू आर, OQ इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर। OP क्या है, आर के बराबर है, OQ क्या है, आर प्लस डेल्टा आर। एंगल XOP थीटा है, एंगल POQ डेल्टा थीटा है। ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू OP प्रोड्यूस्ड। QM परपेंडिकुलर ड्रॉ करो OP के, और OP को पीछे बढ़ाएं जब ये मिलेगा, ठीक है। ड्रॉ QM परपेंडिकुलर OP प्रोड्यूस्ड इन द राइट एंगल ट्रायंगल OMQ QM इक्वल R प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। QM क्या है, QM डिवाइड बेटे हाइपोटेन्यूज R plus delta R equal to sin delta theta and OM equal to R plus delta R cos delta theta। OM क्या है, R plus delta R cos delta theta। Therefore radial velocity at P along OP equal limit delta P approach to 0, displacement along OP in time delta t बटे delta t, limit delta t approach to 0, displacement along OP in time delta t बटे delta t, limit delta t approach to 0, pm बटे delta t, pm बढ़ा दिया गया। लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, OM माइनस OP, पी एम क्या है, OM माइनस OP बटे डेल्टा टी, लिमिट U अप्रोच टू 0, R प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा माइनस R बटे डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, R प्लस डेल्टा आर कोस डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन राइट डाउन करते हैं तो 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस आर बटे डेल्टा टी। अब इसको हम निकालते हैं तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, आर प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस आर, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर, जो टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि वेरी स्मॉल चेंज है, तो उसका स्क्वायर करेंगे, उसका क्यूब या हायर पावर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, टाइम अप्रोच टू 0, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो ये क्या निकल के आया, रेडियल वेलोसिटी आ गया निकल के। तो रेडियल वेलोसिटी एट पी इक्वल टू डी आर बाई डी टी इक्वल टू आर डॉट विच इज पॉजिटिव टुवर्ड्स आर इंक्रीजिंग। ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी इक्वल टू वेलोसिटी एट पी परपेंडिकुलर टू OP इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू OP इन टाइम डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू OP इन टाइम डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, MQ बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, R प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, R प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दिया, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये R
और ये 1 हो गया साइन थीटा बटे थीटा 1 डी थीटा बाई डी टी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी विच इज पॉजिटिव टुवर्ड्स थीटा इंक्रीजिंग। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी विच इज पॉजिटिव टुवर्ड्स थीटा इंक्रीजिंग। Also the resultant velocity under the root radial velocity क्या थी dr by dt थी प्लस का होल स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी आर डी थीटा बाई डी टी, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है इसका होल स्क्वायर और अंडर द रूट द रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। अब रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पोलर फॉर्म में निकालना। Let u and v क्या है resolved part of the velocity at of p, जो पार्टिकल एट p पे है उसके resolved part u and v velocities हैं। u तो along the op है और v इसके perpendicular है, along and perpendicular to OP रिस्पेक्टिवली हैं एट एनी टाइम टी टाइम पे। तो u क्या होता है dr बाई डी टी, ये निकाले हमने जस्ट। u अलॉन्ग जो रेडियल एक्सल वेलोसिटी होती है dr बाई डी टी होती है और b आपका r डी थीटा बाई डी टी होता है 1। तो आफ्टर ए शॉर्ट interval of time delta t, let q be the position of the particle and u plus delta u b plus delta b be the resolved part of velocities along and perpendicular to oq at time t plus delta t respectively। कहते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद p से q पे आ गया पार्टिकल, p से q पे। Let q be the position of the particle and q का क्या था, उस q के ऊपर u प्लस डेल्टा u वेलोसिटी अलॉन्ग OP है और q की तरफ है और v प्लस डेल्टा b वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एट q be the resolved part of velocities along and perpendicular to OQ at time t plus delta t respectively। तो एक्सेलरेशन एट p along OP इक्वल टू लिमिट डेल u अप्रोच टू 0, चेंज इन वेलोसिटी along OP इन टाइम डेल्टा t बटे डेल्टा t। तो लिमिट डेल्टा t अप्रोच टू 0 u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v कॉस 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा माइनस u बटे डेल्टा t is equal to limit u approach to 0 delta u by u plus delta u cos delta theta minus cos 90 plus delta theta minus आ गया ये b plus delta b sin delta theta minus u बटे delta t। अब cos theta है इसकी एक्सपेंशन लिखते हैं cos delta theta की टेलर थ्योरम से। टेलर थ्योरम मैक्लॉरिन थ्योरम भी टेलर एक्सपेंशन है। तो लिमिट डेल्टा ये u प्लस डेल्टा u, ये u प्लस डेल्टा u और कॉस डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल सोन। अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस आएगा माइनस b प्लस डेल्टा v और साइन डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन। तो डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस u बटे डेल्टा t। अब क्योंकि ये डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो उसका स्केयर और उसकी हायर पावर नेगलेक्ट हम कर देंगे। तो आपके पास किस पर रिड्यूस हो गया ये लिमिट डेल्टा t अप्रोच टू 0 u प्लस डेल्टा u इंटू 1 माइनस b प्लस डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा माइनस u बटे डेल्टा t।
तो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो डेल्टा यू वाई डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा। और ये डी यू बाई डी टी हो गया माइनस वी डी थीटा बाई डी टी, और ये फर्दर डी वाई डी टी डी आर बाई डी टी, इसको खोल लेंगे माइनस आर डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। यू की वैल्यू पुट की हमने, डी आर बाई डी टी होती है, और वी की वैल्यू आर डी थीटा बाई डी टी। यू क्या है आपका वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी, और वी क्या है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इनकी वैल्यू पुट कर दी, तब ये डी टू आर बाई डी टी टू, ये क्या रेडियल एक्सेलरेशन आ गया माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, which is the radial acceleration at p and is positive in the direction of r increasing. तो transverse acceleration at p equal to acceleration at p perpendicular to p. तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो u प्लस डेल्टा u इंटू साइन डेल्टा थीटा प्लस b प्लस डेल्टा v इंटू साइन 90 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा माइनस b बटे डेल्टा t। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा प्लस b प्लस डेल्टा v कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस b बटे डेल्टा t। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा को एक्सपेंशन लिखो टेलर थ्योरम से, डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यू बटे 3 फैक्टोरियल प्लस सोन प्लस b प्लस डेल्टा v 1 माइनस डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सोन माइनस b बटे डेल्टा t। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो u प्लस डेल्टा u डेल्टा थीटा प्लस b प्लस डेल्टा v, बाकी को नेग्लेक्ट कर दिया, हायर पावर्स ऑफ डेल्टा थीटा स्क्वायर क्यूब फोर्थ पावर, नेग्लेक्टिंग स्क्वायर्स एंड हायर पावर्स ऑफ डेल्टा थीटा। तो ये क्या बच गया u डी थीटा बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी, यू डी थीटा बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी आर डी थीटा बाई डी टी। वी की वैल्यू पुट की और यू की वैल्यू पुट कर दी। यू क्या है रेडियल वेलोसिटी है, वी क्या है ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। तो डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो प्लस डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी टू टाइम डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी टू इक्वल टू 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। Therefore transverse acceleration at p equal to 1 by r d by dt r square d theta by dt and positive in the direction of theta increasing। ठीक, नेक्स्ट वेक्टर मेथड से करते हैं। ये था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकर किया था हमने। अब रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज निकाल रहा है बाय वेक्टर मेथड। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए प्लेन कर्व आर इक्वल टू एफ थीटा। ओके, आर इक्वल टू एफ थीटा। Let p be the position of the particle at time t and r be its position vector with respect to O as the origin of vectors. O as the origin of vectors p, let OP equal to r equal to magnitude of r into r cap, where r cap is unit vector along OP. Let OX initial line है, this is initial line, such that angle POX theta है। तो R
कैप यूनिट वेक्टर आर कैप क्या होता है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप. इफ एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू P, then n cap equal to cos pi by 2 plus theta I cap plus sin pi by 2 plus theta j cap, or n cap equal to minus sin theta into I cap plus cos theta into j cap. Differentiating one with respect to t, तो dr by dt equal to minus sin theta d theta by dt into I cap plus cos theta d theta by dt into j cap. तो माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप ब्रैकेट बार डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एन कैप डी थीटा बाई डी टी. डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डी एन कैप बाई डी टी इक्वल टू कॉस थीटा नेगेटिव कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जे कैप डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आर कैप डी थीटा बाई डी टी. आर कैप यूनिट वेक्टर ऊपर ला यूज कर दिया आर कैप हमने लिया था कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे. ठीक, differentiating one with respect to 2t dr by dt equal to minus sin theta d theta by dt into I plus cos theta d theta by dt into j. तो माइनस साइन थीटा इंटू आई प्लस कॉस थीटा इंटू जे डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एन कैप डी थीटा बाई डी टी. डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट डी एन कैप बाई डी टी इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू जे इक्वल टू माइनस कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे टी डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस आर डी थीटा बाई डी टी. तो डी एन बाई डी टी निकाल लिया अपने, डी आर बाई डी टी निकाल लिया. वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पी. पी पे अगर वेलोसिटी वी है तो वी क्या होता है, डी बाई डी टी आर वेक्टर. और आर वेक्टर को आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू आर कैप लिख सकते हो. अब यू इंटू बी फॉर्म हो गया ये. तो पहला फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव डी आर कैप बाई डी टी. तो डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप प्लस आर डी थीटा बाई डी टी इंटू एन कैप. Thus, the velocity v has been expressed as a linear combination of vectors r and n. Radial velocity at p, component of v along r, dr by dt, positive in the direction of r increasing. Transverse velocity of p equal to component of velocity v along n equal to r d theta by dt, पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग है. ये ट्रांसवर्स हो गया. दस एट एनी टाइम टी द रेडियल वेलोसिटी डी आर बाई डी टी पहला डेरिवेटिव आर का एंड इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी एंड इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग. Radial and transverse accelerations. From 5 v equal to dr by dt into r plus r d theta by dt into n cap. Differentiating with respect to t, we get dv by dt equal to d2r by dt 2
r cap plus dr by dt, dr cap by dt। पहले का डिफ्रेंसिएशन सेकंड एज इट इज़, पहला एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। इसी तरह पहला डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, थर्ड एज इट इज़। पहला ऐसे ऐसा, बीच वाले का डेरिवेटिव, लास्ट वाला एज इट इज़। पहले दो एज इट इज़ और लास्ट वाले का डेरिवेटिव। तो डी टू आर बाई डी टी टू आर कैप प्लस डी आर बाई डी टी एन कैप डी थीटा बाई डी टी, डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी एन कैप प्लस आर डी थीटा बाई डी टी टू एन कैप प्लस आर डी थीटा बाई डी टी माइनस आर कैप डी थीटा बाई डी टी यूजिंग 3 and 4। तो डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इंटू आर कैप को अलग कर दिया, एन कैप को अलग, प्लस 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी टू। तो इफ a is the acceleration vector of the particle at p, then a cap d2r by dt2 plus r minus r d theta by dt का होल स्क्वायर इंटू r कैप प्लस 2 dr by dt d theta by dt plus r d2 theta by dt2 n कैप। तो रेडियल एक्सेलरेशन d2r by dt2 प्लस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डबल डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू बाई डी टी का होल स्क्वायर 1 बाई आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। डियर स्टूडेंट्स, you can view this lecture online on college YouTube channel named www.bljscollege.com. Still, if there is any difficulty or any problem, you can contact me through email, WhatsApp or any other mode which you feel convenient. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.